Hello students, so today I am going to start the remaining examples from miscellaneous exercise that is on the formation of differential equation by eliminating the arbitrary constant. In previous video lecture we completed some examples on formation of differential equation, but here some word example. So that is some geometrical based examples. We have to first of all write the equation, and there are some arbitrary constant that we have to eliminate that arbitrary constant purpose to form a differential equation. Is it clear? So ऐसे कुछ examples exercise में भी थे, लेकिन ये miscellaneous exercise के examples हैं. So let us start from the first example. All circles which pass through the origin. So there are lots of circles which is passing through the origin and whose center lies on x axis. ऐसे एक ही सर्कल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस में है बट ओरिजिन से पास होना चाहिए. सो ऐसे सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट वी विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लेट अस सी. फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्कल. दिस इज सर्कल. Center of the circle. This is on x-axis. Center on x-axis. Circle passing through the origin. This is a circle. So this circle satisfies the given condition. The condition is what? Center lies on x-axis and passing through the origin. ऐसे इधर भी एक सर्कल बन जाएगा, उस सर्कल का सेंटर भी एक्स एक्सिस पे ही रहेगा और पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही बन जाएगा, लेकिन हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर किया यहाँ पर. सो हियर जनरल सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है? सो हियर दिस इज सेंटर, इसको हम सी कहेंगे. ये एक्स एक्सिस पे है, सो डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे इसका? 0. सो h, 0. दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ द center of the circle. So obviously this distance is the h. This is the distance, and this distance is the radius of the circle. So therefore equation example number first, given circle whose center is h, 0. सर्कल के दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक सेंटर और दूसरा कौन सा रहता है? रेडियस. एंड रेडियस इज इक्वल टू एच. रेडियस किसे कहते हैं? सेंटर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का कौन सा भी पॉइंट अगर हमने ज्वाइन किया तो वो क्या बन जाता है? रेडियस बन जाता है. सो देयरफॉर बाय दिस वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल. सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर और रेडियस जब हमें पता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. बट हियर आर इज h and k is 0. Therefore this is x minus h whole square plus y minus 0 whole square is equal to h square. Equation of circle in center radius form, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Here center is h, 0 and radius is h. So therefore x square minus 2xh or 2hx plus h square plus y square is equal to h square. This plus h square cancel left hand side and right hand side. So first of all we get the equation, that is x square minus 2hx plus y square is equal to 0. So ये टर्म राइट साइड में डिवाइड ट्रांसफर करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2hx. So here h is the arbitrary constant. It means we have to differentiate only one time. दो बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. सो एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, उसमें एलिमिनेट करना है. सो बेस्ट वे व्हाट वी हैव टू दैट फ्री फ्रॉम द वेरिएबल, उसको फ्री करना है वेरिएबल से, तब उसका डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. सो थ्रू एक्स से डिवाइड करेंगे. सो एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स is equal to 2h.
सबको x से डिवाइड किया। पर्पज इज व्हाट, अगर वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेरिएबल से फ्री हो गया तो उसका डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इट्स u by v into derivative of u minus u derivative of v upon v square is equal to 0। सिंगल स्टेप में हम उसका ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने इलिमिनेट किया। सो u बाय v से सॉल्व किया। u बाय v का रूल क्या, डिफरेंशिएशन का, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। x का विथ रिस्पेक्ट टू x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx माइनस y स्क्वायर is equal to 0 into x square is 0, like this. So E is a required differential equation। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये जो कंडीशन है ज्योमेट्रिकल कंडीशन वो अंडरस्टैंड होना जरूरी है। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस बट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये भी सर्कल है, उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, बट दिस सर्कल डज नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, उसमें से वो पास होना चाहिए। सो दैट इज द कंडीशन। इज इट क्लियर? सो विल टेक नेक्स्ट आफ्टर दिस, आफ्टर सर्कल विल टेक पैराबोला। लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 2 नाउ। ऑल पैराबोलाज। सो पैराबोला की एक फैमिली है, उस पैराबोला में 4 मेजर मेन पैराबोला है। जो राइट साइड में ओपन होने वाला, जो लेफ्ट साइड में ओपन होने वाला, उसका एक्सिस एक्स एक्सिस होती है। जो अप साइड में ओपन वाला और डाउन साइड में ओपन होने वाला पैराबोला, उसके एक्सिस वाई एक्सिस होती है। सो दिस इज द फैमिली ऑफ पैराबोला। ऑल पैराबोला विच हैव 4b एज लेटेस्ट रेक्टम। अगर 4b लेटेस्ट रेक्टम है तो पैराबोला 3rd और 4th का होता है, अप साइड और डाउन साइड, अप साइड वाला ओनली, बट हुज एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, दूसरी एक्सिस बट पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस। सो देखेंगे रफ, इसका मैं रफ आपको तो पहले रफ इसका डायग्राम निकालता हूं। ये वो पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला, definitely vertex at the origin. This distance is 4b, 4b। और ये जो एक्सिस है जो वर्टेक्स से पास होती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। सो सी द एग्जांपल नंबर 2। विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द पैराबोला। दिस इज पैराबोला। ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए। So this is y axis, this is x axis। This point is the vertex. Suppose this vertex is A, that is h comma k, and here is the focus. This is 4b. Is it clear? So axis is parallel to y axis. This is y axis. Here center is origin. No, not this is origin. Vertex is here. So vertex h comma k, latus rectum इज इक्वल टू 4b। जैसे सर्कल में दो चीज इंपॉर्टेंट, एक सेंटर और दूसरा रेडियस, वैसे पैराबोला में दो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वर्टेक्स और उसका फोकस। बट यहाँ पर वर्टेक्स एच कॉमा के, बिकॉज दिस वर्टेक्स इज एट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो बोथ हैविंग व्हाट, पॉजिटिव। 4b इज द लेटेस्ट रेक्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द पैराबोला। सो देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इज एक्चुअली ये पैराबोला कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b वाई, उसका वर्टेक्स ओरिजिन में है, सो इट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b y माइनस 0, 4b y minus 0 because 0 0 is the origin, that is the vertex. Here vertex is what, h comma k, so x minus h whole square, 4b is the latest rectum, this distance is h, something different, so we have only for the latest rectum, that is 4b y minus k. This is equation first. Here are two arbitrary constant only, h and k are the arbitrary constant only, 4b is the length of latest rectum, that is the constant, not arbitrary constant, only h and k. So two arbitrary constant means we have to differentiate only two times. So let us see here, differentiate equation first with respect to x. So x minus h whole square, the derivative is 2 into x minus h into x का derivative 1, h 0. 4b is a coefficient, 4b is a coefficient, derivative of y is dy by dx, the derivative of k is 0, y का dy by dx, k का what, 0. So this is 2 into x minus h is equal to 4b dy by dx, ये 2 और ये 2 cancel, therefore x minus h is equal to 2b dy by dx. एक डिफरेंशिएशन होगा और एक चांस है, बिकॉज देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट h and k, it means we have to differentiate again one more time. So again differentiate with respect to x, the derivative of x is 1, h is 0, 2b as it is, coefficient as it is, the derivative of dy by dx is a d2y by dx square. So we can write 1 plus, ये उधर जाएंगे तो ये ऐसा 2b into d2y by dx को plus 1 right में minus 1 is equal to 0, and this is a required differential equation. Remember, b is not arbitrary constant, b is a length, that is always what, positive, it is a constant term. So this important, ये equation आपको define करना आना चाहिए. This is the parabola because 4b is the latest rectum, पैरेलल एक्सिस, उसके एक्सिस, ये जो पिक पॉइंट होता है वहाँ से पास होने वाली लाइन, दैट इज द एक्सिस, एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो ये इक्वेशन डिफाइन होने के बाद आगे की प्रोसेस सिंपल है. सबसे इम्पोर्टेंट आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन से इक्वेशन डिफाइन करना आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो दिस इज सेकंड एग्जांपल. नाउ विल टेक नंबर थर्ड. Now first was on the circle, second was on the parabola, now third was on the ellipse. So here condition what, an ellipse whose minor axis is twice its major axis. So ऐसा same example मैंने exercise 6.2 में लिया था. I think that example was fourth example from 6.2. Exercise 6.2, formation of differential equation. Ellipse whose minor axis is twice its major axis. मैंने एग्जैक्टली रिवर्स लिया था, मेजर इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस. सो देखो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, लेट 2a and 2b, 2a and 2b are the length of major axis and minor axis of the ellipse. यहाँ पर डायग्राम निकलना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये एलिप्स ये भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है. सो दिस इज कॉल्ड एज द मेजर एक्सिस.
here a comma 0, here minus a comma 0, here 0 comma b, here 0 comma minus b. So this distance is 2b, this distance is 2a, this x-axis is the major axis, y-axis is the minor axis. Given condition is what? Minor axis is twice its major axis. Minor axis is twice its major axis. So these two and these two cancel. What is b? b is equal to 2a. Now equation of ellipse. Equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. ये अपना इक्वेशन ऑफ इलिप्स है. सिर्फ b की जगह पर 2a लिखना है. सो दैट इज देयरफॉर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. b स्क्वायर इज व्हाट? 4a स्क्वायर. सो 4a स्क्वायर इज द LCM. इधर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 4a square. 4a square into 1 is 4a square. This is the actual equation of ellipse. Now a की arbitrary constant है, सिर्फ इसको एक बार differentiate करेंगे. Differentiate with respect to x. So 8x 2y dy by dx is equal to 0. 2 से divide भी कर सकते हैं. 4x plus y into dy by dx. Definitely required differential equation is first order differential equation because एक ही arbitrary constant था तो एक ही first order का ही differential equation बन जाएगा. So is required differential equation. So सर्कल का एक होगा, एक पैराबोला का होगा, एक एलिप्स. मिस्केलियस एक्सरसाइज में पूरा टॉपिक का रिवीजन बनता है. हर कंसेप्ट पे एक एक दो दो एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल थोड़ा ट्विस्टेड भी रहेंगे. सो थोड़ा टफ लेवल के हायर ऑर्डर थिंकिंग के भी रहेंगे. ओके, सो दिस 3 एग्जाम्पल. विल टेक मोर 2 एग्जाम्पल्स ऑन द सेम. सर्कल, पैराबोला, एलिप्स हो गया. अब एक लाइन का एग्जाम्पल, एक हाइपरबोला के एग्जाम्पल. मीन्स इट कवर्स ऑल द ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ दिस ऑल टॉपिक्स. एक सर्कल का होगा, एक पैराबोला होगा, एक एलिप्स होगा, एक लाइन और एक लास्ट इज व्हाट? हाइपरबोला. सो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो. ऑल द लाइन्स विच आर नॉर्मल टू द लाइन. सो व्हाट इज गिवन लाइन? Given line is 3x plus 2y plus 7 is equal to 0. Equation first. हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू ax plus by plus c is equal to 0. That line the slope is what? minus a by b. So मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखता हूँ. minus a by b is the slope, so which is equal to minus 3 by 2. Minus 3 by 2 minus a by b minus 3 by 2. That is the slope of line. Then slope of normal to the line is. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल लेके उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करना है. दैट इज व्हाट इज इक्वल टू माइनस 2 by minus 3. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2 by 3. सो दिस इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन लाइन. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? ऑल द लाइन्स विच आर नॉर्मल टू द लाइन. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन is equation of line which are normal to the given line. That is
y इज इक्वल टू यम, इसको यम कहेंगे हम, एम एक्स प्लस के इज आर्बिटरी, के इज आर्बिटरी, उसको आर्बिटरी कांस्टेंट कहेंगे. सो y इज इक्वल टू 2/3x plus k. So this m is the slope, that is slope of normal to the line, given line. So इसका एक ही arbitrary constant है, so we can differentiate one time only. So 2/3 x का डेरिवेटिव 1, k का डेरिवेटिव 0. So dy by dx is equal to only 2/3. So 3 dy by dx is equal to 2. 3 into dy by dx minus 2 is equal to 0. This is required differential equation. ये जो मैंने राइट किया है सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए. He has given the line, find out first slope of the line. Slope of line का फॉर्मूला है, if line is ax plus by plus c is equal to 0, then slope is minus a by b. If we have to find the slope of normal to the given line, then जो भी slope है उसको रेसिप्रोकल लेना है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है. Is it clear? So that becomes 2/3 plus 2/3, and that is the m. That m is the slope. Then we have to find the line. लाइन का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट के, उसको k कहेंगे, k इज द इन आर्बिटरी. सो m की जगह पर 2/3. सो ये इक्वेशन बनने के बाद इसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. Here is what we have to find the equation by using given geometrical condition. जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन से हमें इक्वेशन बनाना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट. जो हमने पैराबोला में देखा, सर्कल में देखा, इलिप्स में देखा. सो सर्कल में क्या था, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. पैराबोला में क्या दिया था, ऐसा पैराबोला जिसका लेटेस्ट रेक्टम 4b है बट उसका एक्सिस वाई एक्सिस को पैरेलल है. इलिप्स में क्या दिया था, माइनर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स मेजर एक्सिस, राइट. अब यहाँ पर क्या है, ऐसी लाइन, ऑल द लाइन्स विच आर नॉर्मल टू दिस लाइन. ओके, सो नाउ दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल. बट ये जो प्रोसेस है ज्योमेट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट. नाउ फाइनल ऑन हाइपरबोला. ओके, सो फोर्थ इज ओवर, नाउ फिफ्थ. Now let us see the last example on the hyperbola, that is actual to form the differential equation. The hyperbola whose length of transverse and conjugate axis are half of that of the given hyperbola. So this is given hyperbola and we have to first of all form the equation of hyperbola. उसका जो transverse axis है, conjugate axis है, वो half its transverse axis and conjugate axis. सो जैसे एलिप्स में एक्स एक्सिस को हम मेजर एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को हम माइनर एक्सिस कहते हैं. हाइपरबोला में एक्स एक्सिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस व्हाट द कॉन्जुगेट एक्सिस. सो दिस इज द हाइपरबोला. बहुत कम कंसेप्ट होते हैं हाइपरबोला पे. एक हाइपरबोला की डायग्राम. This x-axis is the transverse axis and this y-axis is the conjugate axis. So example number 5. इसका पैराबोला, इसका हाइपरबोला का इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दूसरा ऐसा भी एक हाइपरबोला है, सिर्फ इसको रिवर्स करना है. If transverse and conjugate axes are interchanged, then you will get the second hyperbola. But right side must be is equal to 1. जो इलिप्स में भी है और हाइपरबोला में है. सिर्फ इलिप्स में बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है. ओके, सो हम हाइपरबोला की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे. गिवन हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू के. सो यहाँ पर तो 1 होना जरूरी है, तो के से डिवाइड करेंगे. एक्स स्क्वायर अपॉन 16 के
minus y square upon 36k is equal to 1. Comparing with x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Therefore, a square is equal to 16k, b square is equal to 36k. This implies a is equal to 4 root k, which implies b is equal to 6 root k. 4 root k and 6 root k. Length of transverse axis is equal to 2a is equal to a to root k. Length of conjugate axis is 2b, that is इसका डबल 12 रूट के. सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, वो एलिप्स में. यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस. सो हमें जो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है, जो भी हमें एक रिक्वायर्ड कंडीशन दिया है, जो द हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर हाफ ऑफ दिस, इसका हाफ है. सो लेट 2a and 2b are the length of transverse and conjugate axis of a required हाइपरबोला. ये जो गिवन हाइपरबोला है और रिक्वायर्ड का 2a 2b लिया, सिर्फ इसको कैपिटल में लिखा. सो गिवन 2a इज इक्वल टू हाफ, 2a इज इक्वल टू हाफ, इसका हाफ, इसका 2a एंड 2b आर द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका हाफ है. सो 2a इज इक्वल टू, ये कितना है, 4 रूट के, b कितना है 6 रूट के. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 रूट के एंड b इज इक्वल टू 3 रूट के. सो रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो इसके हाफ है. सो 2a इज इक्वल टू स्मॉल a, 2b इज इक्वल टू स्मॉल b. ये b तो 4 रूट के 6 रूट के था. सो a की वैल्यू 2 रूट के एंड b की वैल्यू कितने आ गए, 3 रूट के. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन कैपिटल B स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर दिस इज x स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर कितना है 4k, y स्क्वायर अपॉन कितना 9k इज इक्वल टू व्हाट 1, इज इक्वल टू 1. सो 36k is the LCM. So is 9k x square minus 4y square is equal to 1. Therefore 9x square minus 4y square is equal to 36k. This is equation second. यहाँ पर कहीं तो इक्वेशन फर्स्ट लिखना जरूरी था हमारा. सो ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट. ओके, जो गिवन था ये पैराबोला, ये हाइपरबोला गिवन, इक्वेशन फर्स्ट. जो रिक्वायर्ड आ गया इक्वेशन सेकंड. 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36k. k इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट.
जो दिया है, सो इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। सो 18x माइनस 8y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 9 टू ज़ा 18x, 4 टू ज़ा 8y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। सो सिर्फ आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ। सो 2 से डिवाइड करने के बाद दैट बिकम्स व्हाट, 9x माइनस 4y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हाइपरबोला का एग्जांपल है ये आपको समझ में आना चाहिए। ही हैज गिवन दिस हाइपरबोला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन प्रॉपर फॉर्म। यू विल गेट a की वैल्यू 4 रूट के, b की वैल्यू 6 रूट के। लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a 2b होती है, वो 8 रूट के बन जाएंगे, 12 रूट के बन जाएंगे। इसको सिर्फ डबल करना है, 4 टू ज़ा 8, 6 टू ज़ा 12। बट जो भी हमें रिक्वायर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन बनाना है उसका ट्रांसफर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस ये लेंथ है, इससे हाफ है। सो 2a इज इक्वल टू हाफ, 2b इज इक्वल टू हाफ। कैपिटल ए कैपिटल बी मैंने रिक्वायर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन का ये भी लिया है। सो फाइनली ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन है, ए की जगह पर 2 रूट के, बी की जगह 3 रूट के लेना है, कैलकुलेशन करना है। आखिरी बार डिफरेंशिएट करो, ये अपना ए की आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये ज्योमेट्रिक कंडीशन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, तभी इसका सॉल्यूशन, इसका इक्वेशन बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। So this is sufficient for today's video lecture. We will take more example on next video lecture. So today I will stop here. Thank you very much.